हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम लोग जो है जेएल मेहता एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया वॉल्यूम 1 के 9 चैप्टर पर है, रीजनल एंड प्रोविंशियल स्टेट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 15th century. Sultanate of Delhi was transformed into a mighty Indian empire by slow but steady conquest of numerous regional kingdoms and feudal estates during the period of a century and a quarter from 1206 to 1335. In course of rapid disintegration from 1335 to 1400, it gave birth to an equally large number of regional and provincial states and feudal principalities. These comprised, among others, the two mighty regional kingdoms of Bahmani and Vijayanagar in the south, the well-established and prosperous provincial Muslim states of Malwa, Gujarat, Jaunpur, Bengal, and powerful Rajput states of Mewar, Marwar, and Rajputana. In between them were interspread hundreds of small monarchies, small semi-independent feudatories, chieftains, and petty estates of hereditary landlords. The big states were usually in perpetual warfare with the rival, while the small ones suffered under and wavered in their feudal loyalties towards the powerful neighbors. The country thus presented a dismal picture from the political angle in the 15th century. The Sultanate, as a binding force between the distant provinces, had ceased to exist and political disintegration of the country was complete. तो क्या कहा जा रहा है कि सल्तनत जब दिल्ली की बन रही थी तो 100 साल से ज़्यादा समय तक में इसने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को खुद में मिला लिया। और जब 1206 से लेकर के 1335 तक और 1335 से लेकर के 1400 में जब सल्तनत डिसइंटीग्रेट होने लगी, बर्बाद होने लगी, तो इसने जितने जैसे किंगडम्स को जोड़ के एक बनाया था वैसे ही किंगडम्स इससे टूटने लगे। प्रोविंशियल रूलर्स जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट कहने लगे। कुछ बड़ी किंगडम्स जो बनी उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है बहामनी और विजयनगर साउथ में। इसके अलावा कुछ मुस्लिम स्टेट्स बने जो मालवा, गुजरात, जौनपुर और बंगाल, और राजपूत स्टेट बने मेवाड़, मारवाड़ और राजपूताना के। ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जो छोटे थे उनको बड़े जो है फ्यूडल, उनको बड़े जो है सप्रेस करके एनेक्स कर लिया करते थे, और अगर दो बड़े स्टेट हैं तो ये आपस में ही पावर स्ट्रगल इनका चलते रहता था। A few special characteristics of 15th century India are, however, noteworthy. Most of the regional and provincial states were ruled by Muslim monarchs. The Sultanate as an Islamic state had declined, but not so the political dominance of Muslim in the subcontinent. Their political power was decentralized and shifted to headquarters of erstwhile iqtas or provinces of the Sultanate. Almost all the major provinces gave rise to Muslim state. Islam was firmly rooted in the soil of India. It had become one of the Indian creeds. The Muslim constituted a part and parcel of Indian society. Islamic culture was gradually intermingling with the Hindu culture and had become acceptable to the Indian society in general. Muslim monarchs and ruling elite were mostly Indian in blood. Thought and attitude, very few of them traced their foreign pedigree or claimed dominant position in the society on that account. They were Indian Muslims in every respect. तो क्या हुआ, कुछ कैरेक्टर वर्दी बात क्या है इस समय की कि जितने भी रीजनल किंगडम थे वो ज़्यादातर मुस्लिम रूलर के अंदर थे। इस्लामिक स्टेट तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मतलब दिल्ली से ख़त्म हो गया, एक सेंट्रलाइज लीडरशिप ख़त्म हो गई, बट डिसेंट्रलाइज लीडरशिप चलती रही क्योंकि रीजनल किंगडम्स में भी इस्लामिक रूलर्स ही हुआ करते थे। और ये जो है ये खुद को अब फॉरेन से ट्रेस करना इन्होंने बंद कर दिया। ये टर्किश मुसलमान, अफ़गान मुसलमान नहीं थे, ये भारतीय मुसलमान थे और हर तरीके से भारतीय ही थे। Many of the regional and provincial rulers of the 15th century, whether Hindus or Muslims, were enlightened and benevolent monarchs who worked for the welfare and happiness of the people, enjoyed their goodwill in abundant measure. They patronized scholars and artists and helped in socio-cultural, moral and material advancement of the country. Bhakti reformers, Sufi saints stood for socio-religious reforms and helped in bringing about a synthesis between Hindu and Islamic culture. Socio-cultural development of early medieval India is much more fascinating than the political history of the times and has been reserved for detailed treatment in a separate volume of personal study.
तो इस समय क्या हुआ कि हिंदू रूलर हो या मुस्लिम रूलर हो, ये लोग जो है बहुत ही बेनेवोलेंट मोनार्क हो गए थे। मतलब अपने लोगों के लिए अच्छी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते थे और तभी तक राजा बने रहते थे जब तक लोगों का वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते थे। इसके साथ साथ जो है समाज सुधारक बहुत सारी संस्था भी खुली और इसके साथ मूवमेंट्स भी चालू हुआ, जिसमें से आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन शुरू हुआ, जिन्होंने समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की और हिंदू और इस्लामिक कल्चर को भी धीरे धीरे क्या किया, जोड़ने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें हैं और इस चीज़ को हम लोग जो है सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। अब हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स बन गए थे उनका क्या हो रहा था। सबसे पहले बंगाल जो है वो मुस्लिम के पावर का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन के रह गया 12th सेंचुरी के ख़त्म होते होते। इसको जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, जो कि मोहम्मद घोरी के जो है स्लेव हुआ करते थे और कमांडर भी, तो उन्होंने जो है बंगाल को कैप्चर कर लिया। खलजी जो है द एंटरप्राइजिंग खलजी चीफ एंड हिज एसोसिएट्स हु बिकेम बंगालीज बाय डोमिसाइल प्रोवाइडेड द न्यूक्लियस ऑफ रूलिंग एलाइट ऑफ प्रोविंस फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। और उनके जो फैमिली हैं बख्तियार खलजी के, उन्होंने जो है वो बंगाल के निवासी बन गए और फिर आने वाले समय तक बहुत लंबे समय तक रूल किया। बंगाल फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड अ पार्ट ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन, albeit its governor enjoyed considerable autonomy, including powers of war and peace with their neighbors. They recruited their own army and maintained separate purse over which Delhi had no effective control. Being situated far away from capital, its governor occasionally behaved as de facto rulers and defied the authority of center whenever they found the opportunity to do so. तो बंगाल क्योंकि काफ़ी दूर था, तो ये भले ही दिल्ली सल्तनत जब से बना तब से बंगाल उसका पार्ट था, लेकिन ये कभी कभी जो है ये कभी कभी जो है ये दिल्ली सल्तनत के राजा की या सुल्तान की बात नहीं भी मानता था जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मतलब जब सुल्तान वीक हुआ करता था। और ये जो है ये अपना सेपरेट पर्स भी मेंटेन करता था जिस पर दिल्ली का कोई कंट्रोल नहीं था। ये अपने अगल बगल के किंगडम से लड़ भी सकते थे, उस पर इनको इन सारी चीज़ में आज़ादी दी गई थी। Ghiasuddin Bahadur, governor of Bengal, revolted against Muhammad bin Tughlaq in 1330-31 but was defeated and killed by royal troop. Thereupon, Bengal was divided into two Ikhta with their headquarters at Sonargaon and Lakhnauti respectively. 1338-39, Bengali Muslim elite revolted against Delhi once again and Sultan was unable to take any action to restore their imperial authority. As a result, two independent Muslim states came into existence in Bengal. Sonargaon, ruled by Fakhruddin Muhammad Mubarak Shah, while Lakhnauti passed under the control of Haji Ilyas. After a brief struggle between his Bengali counterpart, Haji Ilyas acquired control over Sonargaon also and became the sovereign ruler of United Bengal with the title of Samsuddin Ilyas Shah. Firoz Tughlaq made two abortive attempts to bring Bengal into the fold of the Sultanate and had instead to recognize its independence. Ilyas died in 1357 and was succeeded by his son Sikandar Shah, who consolidated his position into a well-knit and flourishing state. तो बंगाल के रूलर थे गियासुद्दीन बहादुर। उन्होंने जो है 1330-31 में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जो है बगावत की, लेकिन उनको जो है हरा दिया गया और मार दिया गया। इसके बाद बंगाल को जो है दो इक्ता में बांट दिया गया, एक सोनारगांव जो कि ढाका भी था, मतलब ढाका प्रेजेंट डे के हिसाब से, और एक लखनौती। तो सोनारगांव और लखनौती। बंगाली मुस्लिम ने जो है वापस से 1338-39 में एक बार दोबारा से रिवोल्ट किया और फिर से जो है दिल्ली ने कोशिश किया कि बंगाल के ऊपर कंट्रोल जमाए, लेकिन इस बार नहीं हो पाया और इस वजह से जो है दो इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट जो है वो बंगाल में एग्जिस्टेंस में आए। अभी क्या हो गया, सोनारगांव को कौन रूल कर रहा था? फखरुद्दीन मोहम्मद शाह, और लखनौती को रूल कर रहे थे हाजी इलियास। और हाजी इलियास बाद में ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो जो है सोनारगांव को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर वो टाइटल लेते हैं शमसुद्दीन इलियास शाह का और फिर वो बंगाल के रूलर बन जाते हैं।
फिरोज तुगलक भी कोशिश करते हैं कि बंगाल को अपने अंदर कर पाएँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है उनके लिए। और हाजी इलियास के बेटे जो हैं सिकंदर शाह, वो जो हैं वो बंगाल की पोजीशन को और पावरफुल कर देते हैं। रूलिंग हाउस ऑफ इलियास वॉज ट्रांसपेल्ड बाय वन जादू, अ हिंदू कन्वर्ट एंटाइटल्ड Jalaluddin Muhammad Shah in 1411. He and his successor ruled over Bengal for about 3 decades. Nasiruddin, a grandson of Haji Ilyas, received the fortunes of old ruling house by acquiring the crown for himself in 1443. The fifth and last descendant of his family was murdered by an Abyssinian slave officer Barbak Shah in 1486, and the state was engulfed in political anarchy. तो क्या बोला जा रहा है कि इलियास की जो रूलिंग हाउस है उसको क्या किया था, उसको इलियास के ही एक हिंदू कन्वर्ट ने, इलियास के ही वहाँ पर जो एक रूलिंग हाउस में एक हिंदू कन्वर्ट थे जिनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद शाह था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो रूल करने लग गए और 3 डेकेड्स तक वो रूल करते रहे। इसके बाद मतलब 30 साल तक जो है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने इलियास की फैमिली के जगह खुद रूल किया। इसके बाद इलियास के जो पोते थे नासिरुद्दीन, उनको लक ने फेवर किया और वो जो है 1443 में जो है वो रूल करना उन्होंने स्टार्ट किया। 5वां और आखिरी डिसेंडेंट जो इनकी फैमिली का था, इलियास की फैमिली का, उनको जो है एक एबिसीनियन गुलाम ने जो है उनका मर्डर कर दिया, एब्सीनिया के गुलाम ने, जिनका नाम बरबक शाह था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनके मर्डर के बाद जो है क्या हो गया कि पूरी अराजकता फैल गई बंगाल में। अल्टीमेटली अ बंगाली नोबल Alauddin Hussain Shah restored law and order in the state and laid the foundation of new ruling dynasty in 1493, which came to be known as Hussaini dynasty. और फिर ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल गड़बड़ हो गया था, तो उसके बाद फिर क्या हो गया कि एक बंगाली नोबेल थे अलाउद्दीन हसन शाह, उन्होंने जो है नया सल्तनत नई डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश कर ली और इस नई डायनेस्टी, नए वंश का नाम था हुसैनी वंश। सिकंदर लोदी जो हैं उन्होंने जो है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया बंगाल को कैप्चर करने का, लेकिन फिर उसके बाद जो है उनको हुसैन शाह के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा। लेटर सन एंड सक्सेसर नुसरत शाह, तो हुसैन शाह के जो बेटे हैं नुसरत शाह, उनको वॉज नोन टू बाबर एज केपेबल एंड पावरफुल मोनार्क ऑफ बंगाल। उनको बाबर कहते हैं कि नुसरत शाह जो है वो केपेबल और पावरफुल मोनार्क थे बंगाल के। नुसरत शाह जो है वो सक्सेसफुल हुए, उनको सक्सीड किया उनके बेटे अलाउद्दीन फिरोज शाह ने as a ruler of Bengal, but the young prince was put to death by his uncle and usurped the throne with the title Sultan Ghiyasuddin Mahmud Shah. तो हुसैन शाह के जो बेटे थे नुसरत शाह, इनको जो है मार दिया इन्हीं के अंकल ने, अलाउद्दीन फिरोज शाह ने, और फिर अलाउद्दीन फिरोज शाह जो है वो खुद सुल्तान बन गए, सुल्तान घियासुद्दीन महमूद के नाम से जो है वो टाइटल पर वो जो है वो थ्रोन पर आए। तो नुसरत शाह के बेटे अलाउद्दीन फिरोज शाह को जो है उनके ही अंकल ने जो है मार दिया और वो उनके जो अंकल हैं वो जो है घियासुद्दीन महमूद शाह के नाम से थ्रोन पर आए। और घियासुद्दीन महमूद शाह को जो है शेर खान या फिर शेर शाह सूरी, जो बाद में जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, मतलब पढ़ते भी हैं बाद में सूरी एम्पायर में, तो शेर शाह सूरी जो है उन्होंने जो है घियासुद्दीन महमूद शाह को हराया और बंगाल से हटा दिया। और फाइनली जो है दिस वॉज वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन बंगाल। और फिर धीरे धीरे शेर शाह सूरी जो है वो बिहार पर उन्होंने कंट्रोल किया था, फिर उन्होंने अपना कंट्रोल जो है बंगाल की तरफ भी बढ़ा लिया। अभी जौनपुर। Firoz Tughlaq founded the town of Jaunpur on the bank of Gomti during the return march from the Second Bengal expedition in 1359-60 in the memoir of his cousin Jona Khan. In 1494, Sultan Mahmud Tughlaq sent Malik Sarwar Khwaja Jehan, an eunuch, to Jaunpur to administer the territories from Kannauj to Bihar with the title of Sultan Ush-Sharq, Lord of the East. After the sack of Delhi by Amir Timur, Malik Sarwar set up as the de facto ruler of Jaunpur. However, he did not assume royal title.
On his death in 1399, his adopted son assumed the title Sultan Mubarak Shah and laid the foundation of what is known as Sharki dynasty of Jaunpur. He died in 1402 and was succeeded by his younger brother Ibrahim Shah, the greatest ruler of the dynasty. A capable administrator scholar, Ibrahim Shah gave a long era of peace and prosperity to his people. He was a patron of art, architecture, education, and learning. He beautified his capitals by the construction of magnificent public buildings, gardens, and educational institutions, as a result of which the town became great center of Islamic culture and learning and earned the title of Siraj of India. जौनपुर जो है उनको फ़िरोज़ तुगलक ने जो है दूसरी बार जब बंगाल एक्सपीडिशन में वो अनसक्सेसफुल रहे तो लौटते वक्त जो है उन्होंने जो है जौनपुर सिटी को जो है अपने भाई जौना खान के यादों में बनवाया। और सुल्तान महमूद तुगलक जो है उन्होंने जो है यहाँ पर क्या किया, सुल्तान महमूद तुगलक जो है वो फ़िरोज़ तुगलक के बेटे हैं, तो उन्होंने मलिक सरवर ख्वाजा जहान को जो है जौनपुर का रूलर बना दिया। और सुल्तान महमूद तुगलक ने जो है मलिक सरवर ख्वाजा जहान को जौनपुर का रूलर बनाया और उनको उपाधि दी सुल्तान उस शर्क का, मतलब लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। और इसके बाद जब दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गया अमीर तिमूर के अटैक से, तो क्या हो गया कि मलिक सरवर जो है वो क्या हुआ, वो डिफैक्टो रूलर बन गए जौनपुर के, क्योंकि दिल्ली तो पूरा बर्बाद हो गया तो कोई है नहीं उनको क्वेश्चन करने के लिए या उनसे सुपीरियर। लेकिन इन्होंने मलिक सरवर ने इसके बाद भी कभी भी रॉयल टाइटल जैसे सुल्तान ऐसी कोई उपाधि नहीं ली। मलिक सरवर जब मर गए 1399 में तो इनके अडॉप्टेड बेटे जो हैं उन्होंने सुल्तान की उपाधि ली, सुल्तान मुबारक शाह के नाम से वो फेमस हुए और उन्होंने जो है सरकी वंश की स्थापना की जौनपुर में। जब सुल्तान मुबारक शाह की मृत्यु हो गई 1402 में, तो उनके जो हैं छोटे बेटे, उनके जो छोटे भाई हैं इब्राहिम शाह, वो जो हैं वो आ गए और वो रूल करने लगे। इब्राहिम शाह जो हैं वो सरकी वंश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर रहे और उन्होंने जो है उनके एरा में सरकी वंश या फिर जौनपुर में जो है कल्चरल रिवाइवल हुआ, बहुत सा इस्लामिक कल्चर, लर्निंग और पीस ये सब बहुत ज़्यादा फैला, जिस वजह से जौनपुर को जो है सिराज ऑफ इंडिया भी या सिराज हिंद भी कहा जाने लगा। इब्राहिम शाह के बाद जो है जौनपुर के थ्रोन पर महमूद शाह आए, जो कि हु मैरिड द डॉटर ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह सैयद ऑफ दिल्ली। और महमूद शाह के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो महमूद शाह ने जो है अलाउद्दीन आलम शाह सैयद की बेटी से शादी किया। ही वॉज शॉक टू नो द और जब अलाउद्दीन आलम शाह को जो है बहलोल लोदी ने हटा दिया था दिल्ली से और वो बदाऊं चले गए थे आलम शाह, तो उनकी जो बेटी है, जो हमने पढ़ा कि महमूद शाह की जो वाइफ थी या अलाउद्दीन आलम शाह की बेटी, वो बहुत भड़काते रहती थी कि आप जो है मेरे पिता का एम्पायर था तो आप वो ले लो वापस लोदीज से। तो ये जो है ये कांस्टेंट वॉर में रहे लोदीज के साथ। तो बहलोल लोदी जिन्होंने हु हैड यूजर्व्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज इक्वली एंशियस टू ब्रिंग जौनपुर बैक इनटू द fold of the Sultanate once again. It led to the outbreak of a long protracted struggle between Delhi and Jaunpur for political supremacy. On the death of Mahmud Shah, the eldest son Muhammad Shah became the Sultan of Jaunpur. He was however assassinated by a rival at the court, partly which installed his younger brother Hussain Shah on the throne. He invaded Delhi but was repulsed by Behlol Lodi. The two parties entered into truce which lasted only 4 years, and war broke out between them once again. In the long run, Jaunpur was conquered by Lodi Sultan and Hussain Shah fled to South Bihar. He died a fugitive in 1500, and with his death, the Sharki dynasty came to an end. As narrated in the previous chapter, Behlol Lodi placed his eldest son Barbak Khan on the throne of Jaunpur and retained the separate identity of the kingdom in subordinate association with Delhi.
तो ये हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। तो बहलोल लोदी से जो है इनकी भिड़ंत हो जाती है महमूद शाह की, और फिर जब महमूद शाह मरते हैं तो महमूद शाह के जो बड़े बेटे होते हैं मोहम्मद शाह, वो थ्रोन पर आते हैं, लेकिन मोहम्मद शाह को जो है कोई राइवल जो है वो कोर्ट में मार देता है। तो मोहम्मद शाह के छोटे भाई हुसैन शाह जो हैं, जो कि महमूद शाह के दूसरे बेटे थे, ये थ्रोन पर आते हैं। और ये भी जो है दिल्ली के साथ अपने पिता की जो लड़ाई थी ये भी कंटिन्यू करते हैं, और फिर जो है इनको बहलोल लोदी कोशिश करते हैं हराने की, हटाने की, और फिर ये इनके बीच में जो है स्ट्रगल चलते रहता है। फाइनली जो है बहलोल लोदी उनको हरा देते हैं, हुसैन शाह को हरा देते हैं, और हुसैन शाह जो है वो साउथ बिहार भाग जाते हैं। तो शर्की डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि बहलोल लोदी क्या करते हैं, अपने सबसे बड़े बेटे बरबक खान को जो है जौनपुर के थ्रोन पर प्लेस कर देते हैं, और जौनपुर जो है वो एक मतलब पैरेलल इस्लामिक यूनियन बन जाता है दिल्ली की तरह, दिल्ली से अलग होकर के पहले था, और फिर बाद में जो है वो उसको सबऑर्डिनेट कर देते हैं सिकंदर लोदी ही दिल्ली में जौनपुर को। अब मालवा, it was conquered and annexed by Delhi by Alauddin Khalji in 1305. It remained a part of the Sultanate up to 1398 until its governor Dilawar Khan Ghori set up the de facto ruler without assuming a royal title. His son Hushnag Shah adopted all the insignia of royalty. He was a great warrior who fought many battles against the neighboring chief. His son and successor Muhammad Shah Ghori was deposed by his crafty wazir Mahmud Khan Khalji in May 1436. The latter assumed the title of Shah and laid the foundation of Khalji dynasty of Malwa. Mahmud Shah extended the boundary of his kingdom during the long reign of 33 years. The fourth ruler of the Khalji dynasty, Mahmud II, was inefficient and incapable. A famous Rajput chief, Medini Rao of Chanderi, exercised great influence in internal politics of Malwa and for some time acted even as the prime minister of the state. Malwa was, however, torn by mutual dissensions and revolt of the Muslim nobles. To his misfortune, Mahmud II entered into a deadly conflict with the Sisodia Rajput of Mewar and suffered defeats at the hand of Rana Sangram Singh. Malwa was conquered by Sultan Bahadur Shah of Gujarat in 1531. It was overrun by Humayun in 1535-36 and annexed to the Mughal Empire of Delhi. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मालवा जो है इसको जो है दिल्ली अलाउद्दीन खलजी जो है वो इसको जो है कॉन्कर कर चुके थे। मालवा जो है वो 1398 तक दिल्ली का ही पार्ट रहा, जिसके बाद मालवा के जो गवर्नर थे दिलावर खान घोरी, उन्होंने जो है बिना रॉयल टाइटल अज्यूम किए खुद को जो है वो काइंड ऑफ सेपरेट कर लिया। दिलावर खान घोरी के बेटे जो हैं हुशनाग शाह, इन्होंने जो है सारा एक रॉयलिटी का जो भी कैरेक्टर्स होता था सब इनमें था। ये एक अच्छे वॉरियर थे, नेबरिंग चीफ के साथ बहुत सारे बैटल्स इन्होंने लड़े हुए थे। और हुशनाग शाह के जो बेटे थे मोहम्मद शाह घोरी, वो जो हैं उनको जो है उनके क्राफ्टी वज़ीर ने जो है हरा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिलावर खान सबसे पहले आ रहे हैं। दिलावर खान घोरी जो कि दिल्ली सल्तनत के ही गवर्नर थे मालवा में, वो खुद को रूलर बना लेते हैं। और दिलावर खान घोरी के बेटे हुशनाग शाह जो हैं वो काफ़ी ग्रेट वॉरियर होते हैं, और वो उनके समय में भी इनका चल रहा होता है, सही सिनेरियो सही चल रही होती है। हुशनाग शाह के जो बेटे होते हैं उनको जो है उन्हीं के वज़ीर जो हैं, उनके बेटे के वज़ीर मोहम्मद शाह घोरी उनके बेटे होते हैं हुशनाग शाह के, और उनको उन्हीं के वज़ीर महमूद खान खलजी जो हैं वो हटा देते हैं थ्रोन से। और महमूद खान खलजी जो हैं वो खुद शाह का टाइटल ले लेते हैं, उपाधि ले लेते हैं। और महमूद खान खलजी से शुरू होती है मालवा में खलजी वंश। महमूद शाह, क्योंकि अब ये खान खलजी छोड़कर इन्होंने शाह का टाइटल ले लिया, तो महमूद शाह का रूल जो है वो 33 साल तक चलता है। चौथे रूलर जो हैं इस डायनेस्टी के, खलजी डायनेस्टी के ऑफ मालवा के, उनका नाम होता है महमूद II। वो बहुत ही इनकेपेबल होते हैं, और मेदिनी राय जो चंदेरी के होते हैं वो उनके कुछ समय तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और वो मालवा के इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत दिमाग लगाते हैं। मालवा जो है लेकिन वो भी कर ही रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, मालवा के जो नोबेल्स होते हैं, मुस्लिम नोबेल्स, वो आपस में इतना झगड़ा कर रहे होते हैं कि मालवा जो है वो वीक हो जाता है।
और महमूद टू जो है उनका सिसोदिया, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत से जो है वो एकदम उनकी भिड़ंत हो जाती है, जिस वजह से जो है वो राणा संग्राम सिंह से हार जाते हैं भिड़ंत में। और फिर मालवा जो है उसको क्या किया जाता है, फाइनली गुजरात के रूलर सुल्तान बहादुर शाह जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं 1531 में। और 1535-36 में हुमायूं जो है वो इनको कैप्चर कर लेते हैं मालवा को, और मुग़ल एम्पायर में मिला लेते हैं। अब पढ़ते हैं गुजरात। Province of Gujarat was conquered by Alauddin Khilji in 1297. Its governor and local ruling elite made many abortive attempts to liberate themselves from the yoke of the Delhi during the reign of Muhammad bin Tughlaq and Firoz Tughlaq. After the invasion of Amir Timur, Gujarat became virtually independent of Delhi under its governor Zafar Khan, son of Hindu convert. He assumed the title of Sultan Muzaffar Shah in 1401 and ruled for another decade, succeeded by his grandson Ahmad Shah, who proved a very capable and successful ruler, established headquarters at a new township named after him as Ahmedabad. The sixth ruler of the dynasty, Mahmud Shah alias Baghera, was the greatest and most powerful ruler of Gujarat. The Portuguese built a factory at Diu during his reign. He was succeeded by Muzaffar Shah II, who had hard pressed to preserve the independence of the state against encroachment by the rulers of Malwa and Mewar. तो पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। तो गुजरात जो है उसको अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मिला लिया था, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक आए और एम्पायर वीक हो रहा था तो गुजरात ने कोशिश किया कि वो दिल्ली से हट जाए। जब अमीर तिमूर ने एक्चुअली में अटैक कर दिया तो गुजरात जो है वो फाइनली दिल्ली से हट गया, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूरी बर्बाद हो गई थी। और इस समय जो है गुजरात के गवर्नर थे जफ़र खान। जफ़र खान जो है किसी हिंदू कन्वर्ट के ही बेटे थे और उन्होंने जो है टाइटल लिया सुल्तान मुजफ्फर शाह का 1401 में, और वो 10 साल तक उन्होंने रूल किया। जफ़र खान को सक्सीड किया उनके पोते अहमद शाह ने, और अहमद शाह जो है एक बहुत ही कैपेबल रूलर थे। अहमद शाह ने जो है हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया एक नए टाउन में, जिसका नाम उन्हीं के अहमद शाह के नाम पर अहमदाबाद पड़ा। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अहमद शाह के नाम पर अहमदाबाद पड़ा। और अहमद शाह कौन थे, तो ज़फ़र खान के जो हैं वो पोते थे। उसके बाद अहमद शाह के नाम पर अहमदाबाद पड़ा। जो छठे रूलर थे इस डायनेस्टी के, महमूद शाह अलाइस बाघेरा, ये जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे। और ये इनका पीरियड क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पोर्टुगीज़ लोग जो थे, पुर्तगालियों ने जो है दीव में इन्हीं के समय, बाघेरा के ही रूल के समय जो है दीव में फैक्ट्री बनाई थी। बाघेरा के बाद आते हैं मुजफ्फर शाह II, जो कि काफ़ी इनकेपेबल होते हैं, और मेवाड़ और मालवा के रूलर जो हैं इनके समय में गुजरात पर अटैक करने लग जाते हैं। जब मुजफ्फर शाह II की डेथ हो जाती है जुलाई 1526 में, तो उनके बेटे मुजफ्फर शाह II के बेटे बहादुर शाह सुल्तान बनते हैं। बहादुर शाह थोड़े बहादुर भी होते भी हैं, तो ये जो हैं ये बाउंड्रीज़ को बढ़ाते हैं और मालवा को कॉन्कर कर लेते हैं 1531 में। ही वॉज टर्न आउट ऑफ मालवा एंड गुजरात इन 50। लेकिन फिर क्या होता है, इसी समय जो है इंडिया के उसमें जो है हुमायूं भी हैं, तो हुमायूं 1535-36 में जो है बहादुर शाह को हरा देते हैं और मालवा और गुजरात से भगा देते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ नेग्लिजेंस एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द लेटर, ही रिकवर्ड गुजरात फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द मुगल्स। लेकिन हुमायूं जो है ये भी थोड़े इनकॉम्पिटेंट रूलर हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे अगर बाई चांस, तो वी विल सी व्हाट ही वॉज डूइंग। तो हुमायूं क्यों इनकॉम्पिटेंट है ये भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि हुमायूं की इनकॉम्पिटेंसी का फ़ायदा उठा करके बहादुर शाह जो है वो वापस से क्या करते हैं कि बिहार को जो है बहादुर शाह जो है वो गुजरात को रीगेन कर लेते हैं। बहादुर शाह जो है वो बहुत सारे बैटल्स लड़ते हैं मुगल्स के साथ, और शेर खान के साथ मिल करके, जो शेर खान जो साउथ बिहार के रूलर होता है। और फिर फाइनली जो है हुमायूं को जो ग्रेट इनकन्वीनियंस होता है वो जो है वो 10 साल तक उनको जो है वो इंडिया से बाहर रहना पड़ता है, 10-15 साल तक। तो उसका कारण क्या है, उसके कारण जो है वो बहादुर शाह भी हैं। मेन कारण तो वैसे शेर खान है।
वो जो है एक्चुअली में ही फेल अ विक्टिम टू द ट्रेचरी ऑफ पोर्टुगीज हु ड्रोन्ड हिम इन द सी इन February 1537. His successors, though weak and incapable, continued to rule over Gujarat till it was conquered by Akbar in 1572. लेकिन बहादुर शाह की फाइनली एंड कैसे हो जाती है? पुर्तगाली लोग जो आए होते हैं वो ही जो है इनके साथ जो है छल कर लेते हैं और इनको जो है सी में गिरा देते हैं, जिसके बाद जो है इनकेपेबल और वीक रूलर्स की वजह से इनको सक्सीड करते हैं, जिस वजह से लेकिन फिर भी जो है गुजरात जो है इंडिपेंडेंट रहता है। फाइनली अकबर जो है 1572 में गुजरात को कैप्चर करते हैं। राजपूताना, द क्रेडिट फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपूताना गोज टू अलाउद्दीन खिलजी. द फॉल ऑफ रणथंभोर एंड चित्तौर compelled the other Rajput chief of the region to acknowledge suzerainty of Delhi, albeit the Rajput did not reconcile themselves to the loss of their independence within their own homeland and started a counter-offensive against the victors. Within 2 years of Alauddin's death, Chittor was liberated and the Sisodia Rajputs from the Turkish rule. It signaled a general uprising in the region against the Sultanate, which resulted in the emergence of many new Rajput principalities. Mewar and Marwar are most prominent among them. तो राजपूताना जो है तो अलाउद्दीन खिलजी को क्रेडिट जाता है, उन्होंने जो है रणथंभोर और चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद बाकी राजपूत लोगों ने जो है अलाउद्दीन को सुपीरियर मान लिया। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन मरे तो अलाउद्दीन के मरने के 2 साल बाद जो है सिसोदिया राजपूत ने जो है टर्किश रूल से चित्तौड़ को इंडिपेंडेंट किया और फिर बाकी धीरे धीरे जो है वो अलग अलग जगह जो है वो ऐसे ही इंडिपेंडेंट होते गए और इसी क्रम में जो है मेवाड़ और मारवाड़ जो है 2 इंडिपेंडेंट राजपूत प्रिंसिपैलिटी बना। अभी वी विल रीड अबाउट मेवाड़ एंड देन वी विल रीड अबाउट मारवाड़, देन कश्मीर, उड़ीसा एंड देन वी विल बी मूविंग टू southern India. Okay, so Mewar, with its capital at Chittor, re-emerged as sovereign kingdom under Rana Hamir, a worthy son of illustrious Rana Ratan Singh. During his reign of 46 years, Hamir revived the glory of ancient Mewar by his brilliant victories and administrative achievement. His son and successor Kshetra Singh was also a capable ruler. He lost his life in a family feud. One of his successors, Rana Kumbh, was a great warrior who waged successful wars against the neighboring Rajput state as well as sultans of Malwa and Gujarat, transformed Mewar into a premier state of central India, built the famous Kirti Stambh or Vijay Stambh, the tower victory of Chittor in 1448 in commemoration of victory against Malwa. He beautified Chittor by the construction of public buildings, parks, socio-cultural institutions. Rana Kumbh was a great scholar and patron of education and learning. तो मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़ था और मेवाड़ जो है वहाँ पर राणा हामिर रूल किया करते थे। राणा हामिर जो है वो राणा रतन सिंह के बेटे थे। राणा हामिर की जो है 46 साल की लंबी रेन रही और उसमें जो है मेवाड़ को उन्होंने शांति और एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट प्राप्त करवाया। राणा हामिर के बेटे क्षेत्र सिंह जो है वो भी एक अच्छे रूलर थे, पर उनको जो है पारिवारिक मतभेद में मार दिया गया। राणा हामिर के एक सक्सेसर राणा कुंभ भी थे और वो जो है वो एक ग्रेट वॉरियर बने और उन्होंने जो है सक्सेसफुल वॉर्स लड़े दूसरे राजपूतों के साथ, मालवा, गुजरात के साथ, और राणा कुंभ ने के ही नाम पर जो है विजय स्तंभ बना है। उन्होंने ही विजय स्तंभ बनवाया है मालवा पर अपने जीत को मनाने के लिए। उन्होंने चित्तौड़ को सजाया और खूबसूरत पब्लिक बिल्डिंग, पार्क और इंस्टीट्यूशंस बनवाया। राणा कुंभ जो हैं वो स्कॉलर थे और एजुकेशन और लर्निंग के पैट्रन थे वो। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 15th century, रायमल was the ruler of Mewar, whose illustrious son Rana Sangram Singh alias Rana Sanga was a contemporary of Babur. तो 15वीं शताब्दी के अंत में जो है रायमल जो है वो मेवाड़ के राजा बने और रायमल के ही बेटे थे राणा संग्राम सिंह या फिर राणा सांगा, जो कि बाबर के समकालीन थे।
Born in 1482, Sangha was selected by Rajput nobles of Chittor to be their king in preference to his brother Jai Singh because of his virtuous character and martial qualities of leadership. He proved himself worthy of confidence reposed in him by his nobles. His life was full of struggle and strife against the neighboring Rajput as well as Muslim states. तो क्या हो गया, रायमल के बाद जो है राजपूत मंत्रियों ने जो है चित्तौड़ के, उन्होंने जय सिंह से ज़्यादा जो है राणा सांगा को प्रेफर किया कि राणा सांगा रूलर बनने चाहिए, क्योंकि राणा सांगा में बेटर क्वालिटीज़ थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और राणा सांगा जो है उनके मंत्रियों ने जो उन पर ये विश्वास दिखाया, उस पर वो खड़े भी उतरे। लेकिन उनको जीवन पर्यंत जो है बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। He wore 80 scars of wounds on his body which had shed each one of its leg, eyes and arms in the warfare. उनके पूरे शरीर में जो है चोट के निशान थे, उनके पैर में, उनके हाथों में, उनकी आँखों के आसपास, ये सब जो है उनको युद्ध करते हुए लगे थे। Rana Sanga rose to be the greatest of all warriors of the country during his time. He inflicted a crushing defeat on the ruler of Malwa, while the sultans of Gujarat were never permitted by him to extend their sway into Malwa or Rajputana. Once the armies of Ibrahim Lodi were also defeated by Rana Sanga before they could step into the soil of Rajputana. The greatest ambition of his life was to conquer Delhi and establish Hindu rule over the whole of northern India. It was perhaps with this intention that he welcomed the Indian invasion of Babur. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राणा सांगा जो है वो अपने समय के सारे रूलर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ग्रेट हुआ करते थे, और उन्होंने जो है मालवा के सुल्तान को भी हराया, मालवा के रूलर को हराया था, और गुजरात के सुल्तान को कभी मालवा में अपना कब्ज़ा बनाने का मौका भी नहीं दिया, ना राजपूताना घुसने दिया। एक बार इब्राहिम लोदी को भी हरा चुके हैं ये, और इनका सबसे बड़ा एम्बिशन, सबसे बड़ा मकसद था कि ये दिल्ली पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, और दिल्ली में जो है हिंदू राज्य जो है स्टैब्लिश करना चाहते थे पूरे के पूरे उत्तर भारत में। इसी वजह से ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को कोई रास्ते से हटा दे। तो जब बाबर भारत आते हैं तो इनको लगता है बाबर भी अमीर तिमूर जैसे ही होंगे, क्योंकि अमीर तिमूर के परिवार से थे, तो इनको लगता है अमीर तिमूर जैसे आए और उन्होंने लूट खसोट मचाया, खून खराबा किया, फिर वापस चले गए धन लेकर। उनको लगा बाबर भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन उनके सारे उम्मीदों पर बाबर ने पानी फेर दिया जब बाबर ने दिल्ली को ऑक्यूपाई करके जो है सोचा कि दिल्ली को अपना कैपिटल बना ले। तभी राणा सांगा को गुस्सा आ गया कि अरे ये तो जा ही नहीं रहा, ये तो दिल्ली को ही अपना कैपिटल बना रहा। राणा सांगा ने 80,000 सोल्जर, 500 एलिफेंट, 7 राजपूत राजाएं और 104 राजपूत मिलिट्री लॉर्ड्स को जो है अपने साथ मिलाया, और बाबर से बैटल ऑफ खानवा में वो लड़े। 13 मार्च 1527 को ये बैटल हुआ, और इसी बैटल में जो है राणा सांगा जो है हार गए, और वो जो है चित्तौड़ वापस चले गए। और इसके बाद जो है राणा सांगा 2 साल के बाद जो है राणा सांगा मर जाते हैं, क्योंकि वो फिज़िकली बहुत हर्ट हो चुके थे बैटल में, उनको बहुत चोट आई थी। और बाबर जो है इस बैटल में राणा सांगा के अगेंस्ट जीत जाता है। एल्बेट ही डिड नॉट डेयर टू मार्च अपॉन राजपूत सिटाडल ऑफ चित्तौड़। लेकिन इस बैटल में जीतने के बाद भी बाबर ने ये ज़रूरत नहीं की कि वो चित्तौड़ के महल की तरफ या चित्तौड़ की तरफ जो है कूच करे। मारवाड़ मॉडर्न जोधपुर वॉज रूल्ड बाय राठौर राजपूत, द डिसेंडेंट ऑफ राष्ट्रकूट। द किंगडम ऑफ मारवाड़ इमर्ज्ड इनटू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राणा चुंदा। His successor Rana Jodha built a new township with a fort named after him as Jodhpur, which became the capital of Marwar. Rana Jodha secured peace, prosperity and honor for his people during his long reign of 50 years. One of his illustrious son Rana Bika founded the town of Bikaner in 1464, which became the headquarters of another powerful state of Rajputana. With the passage of time, the Rajputs of Marwar confronted the armies of Sher Shah Suri during the reign of Rana Maldev. तो क्या होता है
कि मारवाड़ जो कि मॉडर्न डे में जिसको हम जोधपुर भी कहते हैं, तो ये राष्ट्रकूट के डिसेंडेंट्स जो हैं वो यहाँ वो राजपूत वो राठौड़ राजपूत जो है वो रूल किया करते थे, जो राष्ट्रकूट के डिसेंडेंट्स थे। मारवाड़ जो है राणा चुंदा के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह बन गया, और उनके बेटे राणा जोधा के समय में ये जो है ये और इम्पॉर्टेंट हुआ, और राणा जोधा ने अपने नाम से एक शहर जोधपुर भी बनाया यहाँ पर, जो बाद में मारवाड़ का कैपिटल बन गया। राणा जोधा जो है उन्होंने 50 सालों तक रूल किया, और पीस, प्रॉस्पेरिटी और ऑनर मिला उनके लोगों को उनके रूल के समय में। राणा बीका जो राणा जोधा के बेटे हुआ करते थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की 1464 और फिर उसके बाद जो है बीकानेर जो है वो दूसरा हेडक्वार्टर्स बन गया राजपूत का। राजपूत को जो है वो शेरशाह सूरी की आर्मी से उनकी भिड़ंत हुई राणा मालदेव के समय में। अब कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर डिड नॉट फॉल विद इन द स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली। द क्रेडिट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल दैट देयर गोज टू शाह मिर्जा, एन इनहैबिटेंट ऑफ स्वात, who overthrew the ruling family of his Hindu patron in 1339 and ascended the throne with the title of Samshuddin Shah. तो क्या कहा जा रहा है कि कश्मीर जो है वो दिल्ली के रेंज में नहीं आता था, सल्तनत ऑफ दिल्ली उधर गई नहीं थी, तो कश्मीर में फिर मुस्लिम रूल किसने इस्टेब्लिश किया? तो शाह मिर्जा ने इस्टेब्लिश किया। अपने ही हिंदू राजा, ये मंत्री हुआ करते थे, तो अपने ही हिंदू पैटर्न को ये मतलब उनके कोर्ट में काम करते थे, तो अपने ही पैटर्न को जो है इन्होंने हटा दिया और ख़ुद जो है शमशुद्दीन शाह के नाम से जो है कश्मीर की तख्त पर बैठ गए। इनके ग्रैंड सन शमशुद्दीन शाह के ग्रैंड सन सिकंदर शाह जो है अलायस द बट शिकन वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ अमीर तिमूर्स इन्वेजन। तो सिकंदर शाह जो इन्हीं के ग्रैंडसन थे, वो जो है कश्मीर के रूलर थे जब तिमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। हिज सन अली शाह, सिकंदर शाह के बेटे अली शाह, वॉज डिपोज्ड बाय हिज यंगर ब्रदर शाह खान इन जून 1420। द लैटर असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ जैनुल अबिदीन। तो शाह खान जो है उन्होंने अपने ही भाई को अली शाह को मार दिया, और जो है जैनुल अबिदीन की उपाधि के साथ जो है वो जो है थ्रोन पर आए। ही वॉज मोस्ट एनलाइटेंड एंड पॉपुलर मोनार्क ऑफ कश्मीर हु इंजॉयड अ लॉन्ग रेन ऑफ 49 ईयर। ये कश्मीर के वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटेंड मोनार्क थे, और इन्होंने लगभग 50 साल तक रूल किया। कश्मीर की हिस्ट्री में ये बहुत फेमस है क्योंकि ये रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट थे, धार्मिक कट्टरता नहीं थी इनमें, और इन्होंने लोगों के भलाई के लिए बहुत काम किया। इसलिए इनको जो है जैनुल अबिदीन को जो है अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज हु कंस्टिट्यूटेड मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, ही एबॉलिश्ड जिजिया, बैंड द स्लॉटर ऑफ कॉव्स एंड एक्सटेंडेड लिबरल पैट्रोनेज टू संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो हिंदू की इज्जत करने के लिए, हिंदू के धार्मिक भावनाओं को की सराहना करने के लिए इन्होंने जो है जजिया हटा दिया, जो कि पोल टैक्स होता था हिंदुओं पर। स्लॉटर ये गाय का कटना बंद करवा दिया, और साथ साथ संस्कृत भाषा को भी जो है संस्कृत भाषा को भी जो है संरक्षण दिया। 15वीं शताब्दी की अंत में जो है कश्मीर जो है वहाँ पर अराजकता फैल गई, क्योंकि म्यूचुअल डिसेशन हो गया राइवल ग्रुप्स ऑफ द कोर्टियर्स में। कोर्ट में हर जगह पे वही बात था कि मंत्री हैं उन्होंने ग्रुपिज्म कर लिया है, और दो अलग अलग ग्रुप में जो है क्या हो जाता है, जब वीक रूलर आ जाता है तो राइवल ग्रुप फॉर्म होते हैं, और उसमें जो है आपस में प्रॉब्लम होती है, तो अराजकता फैलती है। और इस समय जो है वैली वॉज पॉलिटिकली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल अपहीवल्स इन दिल्ली। दिल्ली में जो भी उथल पुथल मच रहा था उससे कश्मीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये पूरा एकदम हटके ही था। लेकिन 1585 में जब अकबर होते हैं, तो अकबर ने जो है कश्मीर पर जो है अपना अधिकार बना लिया 1585 में, तब ये जो है मुग़ल एम्पायर का पार्ट बना। देन वी विल डू उड़ीसा। उड़ीसा के बाद सदर्न इंडिया है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो उड़ीसा, इट कंप्राइज अ स्मॉल हिंदू स्टेट सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सीन ऑफ national politics of the 15th century. It extended from the mouth of Ganges to that of Godavari along the sea coast. Its ruler Anant Varman Chod Ganga built the famous Jagannath temple at Puri. तो उड़ीसा जो है वो हिंदू स्टेट था, और वो नेशनल पॉलिटिक्स मतलब दिल्ली के पॉलिटिक्स से बहुत दूर था 15th सेंचुरी में।
और वो जो है गंगा से लेकर गोदावरी तक फैला हुआ था। और इनके जो रूलर थे अनंत वर्मन, उन्होंने जो है जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में, जो आज भी बहुत फेमस है, तो इन्होंने बनवाया। His successors repelled the Turkish invaders and safeguarded their independence against heavy odds. और इनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने जो है टर्किश इन्वेजन्स को जो है रिपेल किया और उड़ीसा को बचाने की कोशिश की। 1359-60 में फिरोज तुगलक ने जो है उड़ीसा पर एक एक्सपीडिशन किया, उड़ीसा के टेरिटरीज़ में, जिसको कि जाजनगर कहा जाता है मुस्लिम क्रॉनिकलर्स में, और रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम इट्स रूलर, और उसके रूलर से जो है ट्रिब्यूट लिया। ही डेसेक्रेटेड द हिस्टोरिक टेम्पल ऑफ जगन्नाथ। द ओनली फैक्ट वर्थ मेंशनिंग रिगार्डिंग दिस स्टेट इज दैट for a very long time it served as a wedge between Muslim state of Bengal and the Deccan and exercised a check on the penetration of Muslim influence into the south from the side of Bengal. तो ये जाजनगर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि क्या हुआ, जाजनगर इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना क्योंकि जाजनगर जो है वो एक वेज था, है ना, मुस्लिम स्टेट ऑफ बंगाल और डेक्कन के बीच में। और मुस्लिम पेनिट्रेशन जो बंगाल से साउथ में हो रहा था उसको चेक करने में ये जगह जो है, मतलब ये एक, मतलब जो है ना, बफर टाइप जोन था। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 15th century उड़ीसा वॉज रूल्ड बाय प्रताप रुद्र देव, who was compelled to surrender a part of the territories situated to the south of Godavari to the monarch of विजयनगर। और फाइनली 15th century में क्या हुआ, जब प्रताप रुद्र देव उड़ीसा में अपना रूल चला रहे थे, तभी जो है विजयनगर किंगडम जो है उसके रूलर ने जो है प्रताप रुद्र देव को उनकी टेरिटरी का जो साउथ पार्ट है उसको जो है क्या कहा कि वो उनको सरेंडर कर दें विजयनगर को, और उन्होंने सरेंडर कर दिया। सो बाय दिस वी आर एंडिंग द रीजनल रूल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया हम लोग जो है दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।